Jai Somnaran friend, today we are going to learn chapter number 14 of Social Science in Standard 9. The chapter name is here given India, Location, Geological Structure and Physiography Part 2. So friend, in chapter number 13, we have learned about India's location as well as its area, and we have also learned about neighbor countries of our nation. So friend, in this chapter we will learn about physiographic condition or physiographic features of our nation. So let us learn our lesson. So friend, you can see here our lesson. There is given first paragraph, the landform which is irregular and has some undulation on the surface of the earth is called physiography. So friend, there is given definition of physiography. So landform which is irregular as well as some undulation. Undulation means altitude on the surface of the earth. So it's called physiography. यानी कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी की जो सरफेस है उसके ऊपर जो लैंडफॉर्म है जो कि इरेग्युलर है और साथ में कुछ जो अल्टीट्यूड एरियाज है तो उसको हम पृथ्वी की फिजियोग्राफी कहते हैं. इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एट्सेट्रा. सो फ्रेंड, in the physiography, mountains, plateaus, plains, etc. are included. Now friend, you can see there one picture. In this picture we can see some relief features of physiography. So you can see here different rivers, hillock, then sea, coast, basin, origin, volcano, mountain, desert, etc. So all these things are included in physiography of earth. In short, we can say that all these things are the part of the physiography. On the basis of physiography, India can be divided into the following physiographic regions. First, Northern Mountainous Region. Second, Great Northern Plains. Third, Peninsular Plateau. Fourth, the Coastal Plains. And last number 5 number archipelagos. So friend, in this way our country is divided into 5 physiographical regions. Now friend, we will learn about all these physiographic regions in detail. Now friend, we will see here one map of our country. So friend, I am sorry if you can't see it clearly, but this map is already given in your textbook. So let us learn this map. There is no any difference between textbook map and on your screen map. By this map we can learn about altitude areas of our nation. So first of all, there is given dark pink color which is indicates here 1200 meters high. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि जो डार्क पिंक कलर आपको दिखाई देता है जो नॉर्थ और ईस्ट में दिखाई देता है तो वो है जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है कि जो कि 1200 मीटर्स हाई इतनी उनकी हाइट है. यानी कि सी लेवल से जो हाइट है तो वो 1200 मीटर्स हाई है. उसके बाद जो लाइट पिंक है तो वो 600 टू 1200 मीटर हाइट दिखाता है. तो आप उनके भी जो रीजन्स है वो रीजन्स हमारे इस मैप में आप देख सकते होंगे. एंड इन द लास्ट देयर इज गिवन माउंटेन रेंज. सो माउंटेन रेंज इज इंडिकेट्स हियर बाय ब्राउन कलर लाइन. तो आप इस मैप में जो माउंटेन रेंज है तो वो भी देख सकते होंगे कि जो हिमालयस है तो हिमालयस में कौन कौन से माउंटेन रेंज है तो वहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो शिवालिक माउंटेन रेंज है, उसके बाद काराकोरम माउंटेन रेंज है. सो फ्रेंड, यू कैन सी हियर डिफरेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ आवर कंट्री ऑफ आवर हिमालयन माउंटेन.
Now friend, we will see here about physiographic regions of our country, which are divided into 5 regions. So first one is here given, northern mountainous region. This is an important natural region of India. It is known as the Himalayan mountain system, spread over 2400 km in west-east direction in the north. So friend, Himalayan mountain system is spread over 2400 km in west-east direction in the north. यानी कि जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है तो वो नॉर्थ में वेस्ट से लेकर ईस्ट तक टोटल 2400 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है. इट हैज़ एन आर्क शेप. इट्स विथ ranges between 240 km to 320 kilometers. So friends, you can also see the width of Himalayan mountain system. The width between 240 km to 320 kilometers. The Himalaya is not a single mountain but is a complex of many mountains ranges. यानी कि जो हिमालयस है तो वो एक सिर्फ सिंगल माउंटेन नहीं है, मगर वो अलग अलग बहुत से माउंटेन रेंजेस के वो एक ग्रुप से बना हुआ है. गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, इट एक्सटेंड्स अप टू म्यांमार वाया इंडिया, नेपाल एंड भूटान. इट हैज़ मोर स्पैन इन तिब्बत इन द नॉर्थ. यानी कि अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में देखते हैं तो वो अफ़गानिस्तान तक वो फैला हुआ है, कि अफ़गानिस्तान से वो म्यांमार तक फैला हुआ है, और बीच में जो इंडिया, नेपाल और भूटान भी आ जाते हैं. और उसका जो सबसे बड़ा एरियाज़ है तो तिब्बत में आता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द माउंटेन सिस्टम नोन एज द पमीर नॉट. यानी कि वो भी एक माउंटेन सिस्टम का ही पार्ट है कि जिसको पमीर नॉट के नेम से जाना जाता है. हिमालयज ऑन द होल can be divided into 2 divisions. First, Northern Himalayan region, second, Eastern Himalayas. यानी कि जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि उसमें जो फर्स्ट नंबर है तो वो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन है, जबकि सेकंड नंबर जो है तो ईस्टर्न हिमालयाज है. सो फ्रेंड, वी विल लर्न अबाउट हियर नॉर्दर्न हिमालयन रीजन. There are 3 mountain ranges parallel to each other. The northern range is called the Greater Himalayas. So friend, these 3 mountain ranges are parallel to each other, and the northern range is known as the Greater Himalayas. This is the loftiest range among the Himalayas, wherein there are more than 40 peaks which exceed height of 7,000 मीटर्स. यानी कि हिमालयस में जो है तो वो सबसे लॉफ्टियस्ट रेंज नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में है, कि जहाँ पे 40 पिक्स वहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, मौजूद है, जिनकी हाइट 7,000 मीटर्स के आसपास है और उससे ज़्यादा भी है. मोस्ट फेमस एमंग देम इज माउंट एवरेस्ट विच इज़ 8,848 मीटर्स हाइट. और वो जो सब पीक्स है तो उसमें से सबसे ऊंची और सबसे फेमस जो पीक है तो वो माउंट एवरेस्ट है, जिनकी हाइट है 8,848 मीटर्स. इट इज़ ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर. इट इज़ नोन एज सागरमत्था इन तिब्बत. यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है तो वो नेपाल और चाइना की बॉर्डर के ऊपर है, और तिब्बत में वो सागरमत्था नाम से पहचाना जाता है. Other famous peak is Godwin Austen or K2, which is 8,611 meter high, which is the highest peak of India. So apart from Mount Everest, there is one another famous peak is Godwin Austen, which is also known as K2. The height of this mountain is 8,611 meters, and this is the highest peak of our country. There are 3 distinct ranges in Himalayas which are almost parallel to each other. यानी कि हिमालय में
कुछ और जो डिस्टिंक्ट रेंजेस है 3 है कि जो एक दूसरे से पैरेलल चल रही है, पैरेलल उसका एग्जिस्टेंस है। इन द ग्रेटर हिमालयाज देर आर सम हाई माउंटेन passes such as जेलेपला, नाथुला, सिपकिला एट्सेट्रा। यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज है तो ग्रेटर हिमालयाज में भी जो हाई माउंटेन्स है तो वो वहाँ से पासिस होते हैं, जिनका नेम है तो यहाँ पे आपको दिया गया है जेलेपला, नाथुला, सिपकिला एट्सेट्रा। मानसरोवर विच इज सिचुएटेड इन चाइना विच इज considered to be a sacred holy place is located in this region। और जो मानसरोवर है कि जो चाइना में है तो वो एक होली प्लेस हिंदू रिलीजन के लिए माना जाता है, तो वो इसी रेंज में आता है। सो फ्रेंड, वी हैव लर्न अबाउट हियर नॉर्दर्न हिमालयन रीजन। नाउ फ्रेंड, वी विल लर्न अबाउट लाइक टू नो विच इज गिवन हियर अबाउट some highest mountains of the world or our country, as well as you can also see their height. So first number is here given, Mount Everest. The height of this Mount Everest is 8,848 meters high. Then K2 means Mount Godwin Austen. So height of this mountain is 8,611 meters. Then Kanchenjunga 8,598 meters. Fourth number Makalu 8,481 meters. Then fifth number Dhavalgiri 8,198 meters high. And last Annapurna 8,070 meters high. So friend, in this table we can learn about height of this mountain which are located in Himalayan mountains region. Now friend, we will learn about second range of northern Himalayan region. So second range to the south of the greater Himalayas is also spread in wider area. It is called Central Himalayas or the Lesser Himalayas। यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज है तो उसकी साउथ डायरेक्शन में जो सेकंड रेंज हिमालयन माउंटेन सिस्टम की है तो उसको सेंट्रल हिमालयाज कहा जाता है, या फिर उसको लेजर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। विथ अ विड्थ रेंजिंग फ्रॉम 80 to 100 किलोमीटर, दिस रेंज इंक्लूड्स माउंटेन रेंजेस लाइक पीर पांजल, महाभारत, नाक्टिबा एट्सेट्रा। So friend, the width of this mountain range is 80 to 100 kilometer, and in this mountain ranges different mountains are located as like Pir Panjal, Mahabharat, Naktiba etc. Many hill stations have developed in this moderately high range. Some of these hill stations are Dalhousie, Dharmasala, Simla, Mussoorie, Ranikhet, Almora, Nainital, Darjeeling, etc. So friend, in this mountain range, different hill stations are located, and the names of these hill stations are already here given. You can also learn in your textbook. Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Hemkund Sahib, etc. are famous holy places. In the same mountain ranges, many holy places are also located here as like Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath, Hemkund Sahib etc. यानी कि ये सब जो होली प्लेसेस है तो वो होली प्लेसेस इस माउंटेन रेंजेस में आते हैं। कुल्लू, कांगड़ा and Kashmir are extremely beautiful natural valleys in this region। यानी कि एक ब्यूटी के लिए जो वैलीज, नेचुरल वैलीज जो पहचानी जाती है कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है, तो वो काश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, तो वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है, यानी कि इसी रेंज में वो सब आते हैं। नाउ फ्रेंड, वी विल लर्न अबाउट थर्ड रेंज of our northern Himalayan region।
Third range is situated in further south, is known as Shivalik, means outer Himalayas, and most of it falls within India. The third range of northern Himalayan region is known as Shivalik mountain range, which is most of part is located in our country. It is about 10 to 15 km wide and has an average height of 1000 meters. यानी कि उसकी जो विड्थ है तो वो विड्थ 10 to 15 किलोमीटर की विड्थ है, और जबकि उसकी जो एवरेज हाइट हम देखते हैं तो वो 1000 मीटर्स के करीब है. Peculiar valley formations have taken place in this range, which are covered by gravel, stones and thick sediments. यानी कि यहाँ पे जो वैलीज है तो उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो कम्प्लीटली पेक्यूलर है या एक डिफरेंट माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये जो वैली है तो वो कम्प्लीटली ग्रेवल, स्टोन्स और थिक सेडिमेंट से कवर हुआ है. लोकली these are known as Dun, for example देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून etc. और लोकली यानी कि वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में उसको दून के नाम से जाना जाता है. तो यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, देहरादून, पाटली दून, कोठारी दून etc. Now friend, we will learn about Eastern Himalaya. Ranges situated in the eastern part of Himalayan ranges have lesser height. Some of them are more famous as hills. यानी कि ईस्टर्न हिमालयस में जो भी हिमालयन रेंजेस है तो उनकी जो हाइट है वो कम है, और कुछ उसमें से एक हिल स्टेशन के लिए भी वो बहुत ही पॉपुलर जाना जाता है. These hills in eastern Himalayas are spread as smaller ranges. Among them, Patkai Hills are situated in Arunachal Pradesh, Naga Hills in Nagaland, and Lusai means Mizo Hills in Mizoram. So friend, among these hills, most of hills are located in eastern Himalayas, which has smaller ranges, and among them Patkai Hills is situated in Arunachal Pradesh, Naga Hills which is situated in Nagaland, and Lusai means Mizo Hills is situated in Mizoram. These hills are located near the eastern border and have their continuation in Arakan Yoma range of Myanmar. यानी कि ये सभी जो हिल्स है तो ईस्टर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है, और उसमें से कई ऐसे भी हिल्स है कि जिसका एरिया जो म्यांमार के अराकन योमा रेंज में आता है. गारो, खासी एंड जेंजिया हिल्स आर इन मेघालय. यानी कि ये जो हिल्स है तो वो मेघालय में सिचुएटेड है. माउंटेन्स रीजन्स हैव मोर रेनफॉल, सो dense forests have developed here. So friend, mountainous regions gets maximum rainfall annually, and that's why the forest of these regions is densely forest. As this is a forested area, roads and railways have not developed much. यानी कि वो एक फॉरेस्टेड एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया होने के कारण वहाँ पे जो रोड्स है, रेलवेज है, तो वो वहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे ज़्यादा है. Now friend, we will learn about the second type of geographic region of our country, which is given here, Great Northern Plain. This northern plain is located between the northern mountainous region and the southern peninsula. यानी कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है तो वो नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन और सदर्न पेनिनसुला के बीच में लोकेट है. दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू द एल्यूवियल सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय हिमालयन रिवर्स सच एज सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. So friend, this plain is formed due to the alluvial sediments which are brought by Himalayan rivers as like सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. यानी कि ये जो प्लेन है तो वो एल्यूवियल सेडिमेंट्स से बना हुआ है, कि जो एल्यूवियल सेडिमेंट्स हिमालयन रिवर्स
वहाँ पे लेकर आती है। और वो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। At some places, the layers of the sediments are about 50 meters thick। यानी कि कुछ प्लेसेस पे ये जो सेडिमेंट्स है, तो सेडिमेंट्स का लेयर 50 मीटर्स थिक यानी कि 50 मीटर्स की चौड़ाई उतनी है। As these plains occupy very large area in North India, these are known as the Great Plains of Northern India। So friend, the maximum area or maximum plains occupy in the northern India. That's why this plain is known as Northern India। यानी कि इस प्लेन का सबसे ज़्यादा एरिया नॉर्थ इंडिया में लोकेट है, तो इसी कारण वो जो प्लेन्स है तो वो प्लेन्स को नॉर्दर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। If we talk about the length of this plain is 2400 km long, and that's why it is considered as the largest river plains of the world. Its western part is narrower than the eastern part। यानी कि उसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा नैरो है ईस्टर्न पार्ट से। द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल लैंड। नन ऑफ इट्स पार्ट इज हायर देन 180 मीटर्स अबोव सी लेवल। यानी कि इस रीजन में जो भी लैंड है तो उसका जो हाइट है तो वो सी लेवल से 180 मीटर से ज़्यादा नहीं है। द प्लेन इज वेरी नैरो नियर दिल्ली। द सतलुज प्लेन इज लाइज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली वाइल द गंगा प्लेन इज इन द ईस्ट। यानी कि जो सतलुज प्लेन है तो वो दिल्ली के वेस्ट में है, जबकि गंगा जो प्लेन है तो यानी कि गंगा का जो मैदान है, गंगा का जो प्लेन है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है। दिस प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ इंडिया। सो दिस प्लेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ आवर कंट्री बिकॉज many or maximum agricultural land is located in this region, and that's why this region is also considered as a prosperous region of our nation. Important cities such as Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata etc. are situated in this plain। यानी कि हमारी कंट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेजर सिटीज़ है तो वो सब सिटीज़ इसी प्लेन में लोकेट हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, बियास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयस। यानी कि सिंधु रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज तो वो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है। जनरली अ रीजन बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। फॉर एग्जांपल, दो मीन्स टू एंड आब मीन्स वाटर। यानी कि ये जो रिवर्स है तो वो रिवर्स दो पार्ट में यानी कि दो रिवर्स से बना हुआ होता है, तो उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। दो का मीनिंग होता है टू और आब का मीनिंग होता है वाटर। यानी कि जो यहाँ पे जो रीजन बना हुआ होता है तो वो दो रिवर के मिलने से होता है, तो उसको दोआब के नाम से जाना जाता है। दस द प्लेन विच इज फॉर्म बाय 5 रिवर्स इज कॉल्ड पंजाब मीन्स पंज प्लस आब। मोस्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान। और इसी तरह से यहाँ पे जो रिवर्स 5 रिवर्स के मर्ज होने से जो एक फॉर्मेशन हुआ है तो उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पंज प्लस आब यानी कि जो पंज रिवर है तो वो पंज रिवर वहाँ पे मिक्स होती है यानी कि मर्ज होती है, कि जो उसका जो मैक्सिमम रीजन है तो वो पाकिस्तान में लोकेट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट बाबर, सेकंड तराई, थर्ड बांगर एंड फोर्थ इज खडर।
यानी कि फिजियोग्राफी के बेस के ऊपर ये जो प्लान है तो वो प्लान्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जो आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा। अ स्मॉल एंड नैरो बेल्ट ऑफ ग्रेवल्स एंड स्टोन्स लाइज पैरेलल टू द रिवर फ्रॉम सिंधु अप टू तीस्ता रिवर इन शिवालिक फुट हिल्स। यानी कि जो ग्रेवल और स्टोन से बना हुआ एक नैरो बेल्ट जो है, छोटा सा जो एक बेल्ट है, तो सिंधु रिवर से फ्रेम हुआ है, यानी कि सिंधु रिवर से वो निकलता है और वो जो तीस्ता रिवर है शिवालिक फुट हिल्स में, तो वहाँ तक वो पहुँचता है। दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 16 किलोमीटर वाइड। इट इज़ कॉल्ड बाबर, यानी कि ये जो बेल्ट है तो उसकी जो विड्थ है तो वो 8 to 16 किलोमीटर विड्थ है और उसको बाबर के नाम से जाना जाता है। द तराई रीजन विच इज मोर ह्यूमिड एंड मार्सी कम्स नेक्स्ट। और तराई रीजन जो है तो वो सबसे ज़्यादा ह्यूमिड है और वहाँ पे जो मार्सी एरियाज वहाँ पे आगे से आता है। डेंस फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर सीन हियर, यानी कि डेंसली फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रीजन। द ओल्ड एलिवियम इन द प्लान इज कॉल्ड बांगर, यानी कि इस प्लान में जो ओल्ड एलिवियम है तो उसको वहाँ पे बांगर के नाम से जाना जाता है। ड्यू टू कंसिस्टेंट डिपोजिशन, it develops a terrace shape which is at a higher level than flood plains. The new sediment of the flood is called खडर, यानी कि कंटिन्यूसली डिपोजिशंस के कारण वहाँ पे जो एरियाज है तो वो टेरेस शेप में एरियाज बनते हैं कि जो फ्लड प्लेन से ज़्यादा ऊंचे होते हैं या हाई होते हैं और वहाँ पे जो न्यू सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं फ्लड के कारण, तो वो वहाँ पे खडर के नेम से जाना जाता है। सो फ्रेंड, वी हैव लर्न अबाउट हियर ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड नंबर, पेनिनसुलर प्लेट्यू। दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। दिस रीजन appears as an inverted triangle. So friend, this region is considered as the oldest region of our country and the shape of this region is a triangle. Its average height is about 600 to 900 meters. Its northern part slopes towards northeast, which is evident from the flow of Chambal, Son and Damodar rivers. So friend, the average height of this region is 600 to 900 meters and this part is slopes towards the north and east directions, and that's why the Chambal river, Son river and Damodar rivers are flowing from these areas. The southern part slopes towards southeast. Most of its area is in south, hence it is also called southern plateau. So friends, southern part is slopes in a southeast direction and that's why this is known as a southern plateau. As it is surrounded by sea on its three sides, it is called a peninsular plateau. यानी कि ये जो एरियाज है तो वो तीनों साइड से सी वाटर से कवर हो गए हैं, यानी कि उसके तीनों और सी वाटर है तो इसके कारण उसको एक पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, मालवा प्लेट्यू and second one is a Deccan plateau. Now friend, we will see here in detail about both plateaus. So first one is here given, Malwa Plateau. Aravalli range is situated to the northwest part of Malwa Plateau. Aravalli is one of the oldest ranges in the world. It is a fold mountain. So friend, Aravalli range is situated in northwest part of this Malwa Plateau and Aravalli is one of the oldest range
इन द वर्ल्ड, यानी कि जो अरवल्ली माउंटेन रेंज है तो वर्ल्ड में सबसे पुरानी एक अरवल्ली रेंज में से माना जाता है, और वो जो उसका शेप है तो वो फोल्ड माउंटेन है। Mount Abu is the famous hill station on this range. It is very beautiful and pleasant. यानी कि जो माउंट आबू है तो वो एक फेमस हिल स्टेशन है इसी अरवल्ली रेंज में, और माउंट आबू जो है तो वो राजस्थान में लोकेट है, और वो एक बहुत ही अच्छा और एक प्लीजेंट यानी कि खुश कर देने वाला वो नज़ारा वहाँ पे दिखता है। गुरु शिखर इज इट्स हाईएस्ट पीक एंड इट इज 1722 meters high. To the south of this region, the rivers Chambal and Betwa emerging from Vindhyachal flow northwards and meet river Yamuna, while river Son flows northwards and meets river Ganga. So friend, Guru Shikhar is the highest peak of Arvalli mountain range, and the height of this Guru Shikhar is 1722 meters. अगर हम साउथ रीजन की जो बात करते हैं तो उसमें से जो विंध्याचल है तो विंध्याचल में से जो चंबल और बेटवा रिवर्स जो है तो वो वहाँ से निकलती है, और वो नॉर्थ वर्ड की तरफ यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती है, और वो जो यमुना नदी है यमुना नदी रिवर को वो मर्ज हो जाती है। जबकि जो सोन रिवर्स है तो वो नॉर्थ वर्ड्स में वो आगे बढ़ती है और वो गंगा रिवर्स को मर्ज हो जाती है। इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप्स नॉर्थवर्ड्स, यानी कि ये हम जान सकते हैं कि वो जो रिवर है तो वो रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो होती है, कि ये जो रिवर्स है तो वो नॉर्थ वर्ड्स में यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में वो फ्लो होती है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज बुंदेलखंड, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है सेंट्रल में तो वो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स दिस, रिवर्स लूनी एंड बनास also originate in the Aravalli range in northeast. Apart from that, Luni and Banas rivers are also originate from Aravalli range, which is in northeast. These rivers vanish in the run of Kutch, while Sabarmati and Mahi rivers meet the Gulf of Khambat. यानी कि ये दोनों रिवर जो है लूनी और बनास रिवर तो वो दोनों रन ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है, यानी कि वो उसमें समा जाती है। जबकि साबरमती और माही रिवर्स तो वो दोनों खंबात का जो गल्फ है तो वहाँ पे वो मिट होती है, यानी कि वो वहाँ पे मर्ज हो जाती है। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स इट कैन बी ascertained that the western part of Malwa Plateau slopes towards southwest, यानी कि ये जो रिवर्स है तो वो रिवर्स का फ्लो देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मालवा प्लेट्यू है तो वो वेस्टर्न पार्ट में जो कि साउथ वेस्ट में वो मर्ज होता है, या फिर उसको उस तरफ उनका स्लोपिंग एरिया मिलता है। Rajmahal Hills and Shillong Plateau are a part of Chota Nagpur Plateau, which also includes Ranchi Plateau. So friend, Rajmahal Hills and Shillong Plateau are also part of Chota Nagpur Plateau, which is also included in Ranchi Plateau. यानी कि जो राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेट्यू जो है तो वो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक हिस्सा है, और वो दोनों रांची प्लेट्यू में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर इंक्लूड हो जाते हैं। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर सेकंड टाइप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू विच इज हियर गिवन, डेक्कन प्लेट्यू. Deccan Plateau is situated to the south of Satpura, Mahadev, Maikal ranges, which are located to the south of the Malwa Plateau. So friend, Deccan Plateau is situated in the south of Satpura, Mahadev and Maikal ranges, which is in the south direction of the Malwa Plateau. The northwestern parts of the plateau are composed of lava deposits,
यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इस प्लेट्यू का है तो वो लावा डिपॉजिट से वो फॉर्म हुआ है, यानी कि उसके जो लावा डिपोजिशन से उसके फॉर्मेशन से ये डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है। On the western side, its border is demarcated by Western Ghats, which runs north-south along the Arabian Sea coast. वेस्टर्न साइड में अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक वेस्टर्न घाट है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन तक आगे बढ़ता है और वो भी अरेबियन सी के पैरेलल में। It has several local names. It is known as Sahyadri in Maharashtra and Karnataka, as Nilgiri in Tamil Nadu, as Annamalai and Cardamom ranges along the border of Kerala and Tamil Nadu. यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है तो उसके अलग अलग नेम्स है, जैसे कि लोकल नेम्स उनको दिए गए हैं, जैसे कि सह्याद्री जो है तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जाना जाता है, जबकि नीलगिरी नाम से तमिलनाडु में जाना जाता है। अन्नामलाई और कार्डमम जो नेम है तो वो केरला और तमिलनाडु के जो रेंजेस है तो वहाँ पे वो जाना जाता है, यानी कि उनके कुछ लोकल नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। द सदर्न पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज मोर लॉफ्टी, यानी कि ये वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पोर्शन है यानी कि साउथ डायरेक्शन का जो पोर्शन है तो वो बहुत ही लॉफ्टी है, यानी कि उनकी जो हाइट है वो हाइट ज़्यादा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रेंजेस बिटवीन 900 to 1000 meters, but at a few places it exceeds that height. So friend, the average height of the Deccan Plateau is between 900 to 1000 meters, and at the few places the height of this range is very high. Few isolated hills having more than 900 meters of height from the eastern boundary of this plateau. यानी कि कुछ ऐसे आइसोलेटेड हिल्स है कि जिनकी हाइट 900 मीटर से भी ज़्यादा है और वो ईस्टर्न बाउंड्री को वो छूते हैं, यानी कि जो ईस्टर्न बाउंड्री की जो प्लेट्यूज है तो वहाँ पे वो दिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, यानी कि उसको ईस्टर्न घाट से जाना जाता है कि जो वेस्ट डायरेक्शन में है तो वो वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्ट डायरेक्शन में जो है तो उसको ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। It has a general slope towards southeast which is evident from the direction of the flow of the rivers. Generally the slope of this region is south to east direction, and that's why the rivers are also flow from south to east direction, except rivers Narmada and Tapi which flow westwards. Most of the rivers of Deccan Plateau flow ईस्टवर्ड्स एंड मीट द बे ऑफ बंगाल, यानी कि नर्मदा और तापी रिवर के सिवा बाकी सभी जो रिवर्स है तो वो सभी रिवर्स डेक्कन प्लेट्यू की जो ईस्टवर्ड्स में वो आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल को वो मिलती है, जबकि नर्मदा और तापी रिवर्स ही दो ऐसी रिवर्स है कि जो वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती है और वो वेस्ट डायरेक्शन में वो मर्ज हो जाती है। फोन नंबर, कोस्टल प्लेन्स means plains along the sea coast. Peninsular Plateau is surrounded by a narrow belt of plains from Kutch to Odisha. It is divided into western and eastern coastal plains. The west coast plain extends from Gujarat to Kerala. So friend, Peninsular Plateau is surrounded by a narrow belt from Kutch to Odisha, and this region is divided into two parts, western and eastern coastal plains, and west coast plain it extends from Gujarat to Kerala. Except in Gujarat, the plain is mostly narrow, यानी कि गुजरात के सिवा बाकी सब जगह पे जो प्लेन यानी कि जो मैदान है वो नैरो है। इट इज़ वेरी मच अंडुलेटिंग एंड is known as मलबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा, यानी कि वो बहुत ही अंडुलेट हुआ है और उसके कारण उसको मलबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है।
वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप क्रीक्स एट देयर एस्चुरीज, यानी कि जो वेस्टर्न कोस्टल एरियाज की जो रिवर्स है तो वो वहाँ पे क्रीक्स डेवलप करते हैं, यानी कि वहाँ पे वैलीज जो है तो वो वैलीज वहाँ पे फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ दीज क्रीक्स आर सबमर्ज वैलीज अंडर रिवर वाटर, यानी कि उसमें से ज़्यादातर जो क्रीक्स है तो वो क्रीक्स रिवर वाटर में मर्ज हो जाती है। These are formed due to the emergence of seashore. It provides favorable conditions for fishery. और ये सब जो है तो वो सीसॉर के कारण वो फ्रेम होती है और वो जगह जो है तो वो फिशरी के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करती है, यानी कि फिशिंग एक्टिविटी के लिए ये कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है। There are many natural ports on the western coast which include Mumbai and Marmugua. In the western coast there are many natural ports, and among these natural ports Mumbai and Marmugua are included. Backwaters have developed along the southern coast of Kerala, and these are known as Kayal in local language, यानी कि जो सदर्न कोस्ट में खास करके जो केरला में जो बैक वाटर्स आते हैं तो उनके कारण एक पॉन्ड जैसी जो रचना होती है तो उस कायल के नेम से जाना जाता है, और ये जो कायल है तो वो एक लोकल लैंग्वेज में उसको बोला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच ब्रॉडर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन, यानी कि जो ईस्ट कोस्ट प्लेन है तो वो वेस्ट कोस्ट प्लेन से ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि वो ज़्यादा चौड़ाई रखता है। देयर इज सब्सटेंशियल एल्यूवियल डिपोजिशन इन द डेल्टाज ऑफ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, यानी कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी रिवर्स की जो डेल्टाज एरिया है तो वहाँ पे एल्यूवियल जो है तो वो वहाँ पे डिपोजिट होती है। Its northern coast is known as North Sircar Coast, and the Tamil Nadu coast is known as Coromandel Coast, यानी कि जो नॉर्दर्न कोस्ट है तो उसको नॉर्थ सिरकार कोस्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु कोस्ट है तो उसको कोरोमंडल कोस्ट के नेम से जाना जाता है। सो फ्रेंड, वी हैव लर्न हियर अबाउट कोस्टल प्लेन्स। फिफ्थ नंबर, आर्चिपेलागस। So friend, archipelagos means islands. There are few archipelagos in India. Andaman Nicobar and Lakshadweep are major archipelagos among them. यानी कि इंडिया में बहुत ही कम आर्चिपेलागस यानी कि आइलैंड्स मिलते हैं, और उनमें से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये दोनों एक मेजर आइलैंड्स माने जाते हैं। There are many smaller islands in Lakshadweep, and these are located at some distance of Kerala coast, यानी कि लक्षद्वीप में बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं और वो सब केरला कोस्ट से दूर है। These islands have a horseshoe shape. Such coral islands are called atolls, यानी कि ये जो आइलैंड्स है तो उनका जो शेप है तो वो हॉर्स शू के शेप में मिलते हैं, और ऐसे कोरल आइलैंड्स को अटोल्स के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। हियर द नंबर ऑफ आइलैंड्स इज ऑल्सो मोर, एंड these आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट, यानी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है तो वो बे ऑफ बंगाल में है, और वहाँ पे जो आइलैंड्स की जो संख्या है तो वो ज़्यादा है और वो इंडियन कोस्ट से बहुत ही दूर है। There are few mountain ranges, some of which are formed due to the volcanic activity, यानी कि अंडमान निकोबार में कुछ माउंटेन रेंजेस भी है कि जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण फॉर्म हुए हैं। These islands are spread over 350 किलोमीटर and have a strategic importance, यानी कि ये जो आइलैंड्स है तो वो आइलैंड्स की जो लेंथ है तो वो 350 किलोमीटर जितनी लेंथ है, और वो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी उनका बहुत ही ज़्यादा है। नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर लाइक टू नो द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज इन बैरन आइलैंड
in Andaman Nicobar archipelagos. Narcondam, which is very near to, it is a dormant volcano. यानी कि जो एक एक्टिव वॉल्केनो जो इंडिया में है तो वो बैरन आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर है, और जो नारकोंदम जो आइलैंड है यानी कि नारकोंदम जो है तो वो एक डोरमेंट वॉल्केनो के पास है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दस देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यानी कि इस तरह से जो इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स में हम डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं। एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड येट ऑल रीजन्स आर इंटरकनेक्टेड। यानी कि हर एक रीजन का खुद का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड आर यूजफुल इन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यानी कि ये सब जो फिजिकल फीचर्स है तो वो फिजिकल फीचर्स का इम्पोर्टेंट इंडिया की प्रोग्रेस में बहुत ही ज़्यादा है, और साथ में ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है तो उसमें भी वो बहुत ही एक यूजफुल माना जाता है। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। यानी कि नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स जो है यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में जो फर्टाइल प्लेन्स है तो उसको एक ग्रेन्स के लिए एक स्टोर हाउस माना जाता है। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के वाला जो पोर्शन है तो वो एक स्टोर हाउस के नाम से जाना जाता है ग्रेन्स का। सदर्न प्लेट्यू इज रिच इन मैनी मिनरल रिसोर्सेज विच हैज़ एनहेंस्ड द नेशनल प्रोग्रेस। जबकि सदर्न प्लेट्यू जो है तो वो मिनरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और वो भी नेशनल प्रोग्रेस में उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है। Many rivers with large volume of water originate in the northern mountainous region, which is also known for a variety of forest resources. अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया की जो डेवलपमेंट के लिए, और वो इसलिए क्योंकि रिवर्स में जो वाटर्स है वो वाटर से ज़्यादा है, और वो सब जो रिवर्स है तो वो सब रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन से बाहर निकलती है और वो इंडिया की सभी एरियाज़ में वो स्प्रेड होती है और फ्लो होती है, जिनके कारण जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज डेवलप हो चुका है, और वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें इंडिया की डेवलपिंग के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, वी हैव सीन हियर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ आवर कंट्री which are most important for the development of our country.